নমস্কাৰ সকলোকে মই বৰ্ষা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো জিত কি পাঠশালাত আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো গ্ৰামাৰৰ আজিৰ টপিকত আমি কাৰেক্ট দ্য টেন্স ফৰ্ম অফ ভাৰ্বৰ বিষয়ে জানিম মই আপোনাক কাৰেক্ট দ্য টেন্স ফৰ্ম অফ ভাৰ্বৰ ৰুল কেইটামান শিকাম আজি সো আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো correct the tense form of verbs কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমি এটা ভিডিও বনাইছিলো টেন্সৰ বিষয় আপুনি নিশ্চয় চাইছে সকে আৰু যদি সোৱা নাই আপুনি চাই লব টেন্স জানাৰ পিছতে আপোনাক এই correct the tense form of verb টো বহুত হেল্পফুল হ'ব টেন্সে আপোনাক হেল্প কৰিব এই correct the tense form of verb টো সলভ কৰিব কাৰণে সো আহক আজি আমাৰ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো আগতে মই জনাইছিলো আপোনাক টেন্সৰ বিষয় সো টেন্স মানে হল টাইম অফ অ্যাকশন আৰু ইয়াৰ তিনি প্ৰকাৰ আছে প্ৰেজেন্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স সো আগৰ ভিডিওতে মই আপোনাক জনাইছিলো যে টেন্স মানে হল টাইম অফ অ্যাকশন মিন্স টাইম অফ অ্যাকশন মানে হল যিকোনো কাম আমি এটা সময়ত কৰো সেই সময়কে টেন্স বুলি কোৱা হয় आज हम करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स सीखने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स सिखाऊंगी कि कैसे आप करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते लेकिन इसके पहले आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है टेंस के ऊपर तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जिससे आपको मदद मिलेगी करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को सॉल्व करने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टेंस का मतलब है टाइम ऑफ एक्शन कोई भी काम हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे करते कोई भी एक काम करने का एक समय होता है उसी समय को हम लोग टेंस बोलते तो टेंस तीन प्रकार के है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के ही कुछ रूल्स देखेंगे कि कैसे हम लोग करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को सॉल्व कर सकते तो आज ही आमी प्रेजेंट टेंसर বিষয়ে জানিম ইয়াৰ কিছুমান ৰুল জানিম যে বহুত ইজিলি মই আপোনাক এই ৰুলটো শিকাম যাতে আপোনাক करेक्ट द टेंस फॉर्म of verb to बहुत easily solve কৰিব পাৰিব সো আহক প্ৰথমত আছে present indefinite tense আগতে মই ভিডিওত কৈছিলো যে present indefinite tense মানে হল যিকোনো কাম আমি সদায় কৰো কিন্তু তাৰ কোনো एग्जैक्ट टाइम नहीं से हमें कोनটো সময়ত কামটো কৰি আছো जो काम हम लोग रेगुलरली करते हैं उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं और यात किसमान वर्ड আছে আপুনি চাব পাৰে যেনে হল অলৱেজ এভৰিডে ইউজুৱেলি জেনাৰেলি ফ্ৰিকুৱেন্টলি অফেন ৰেগুলাৰলি অকেশনালি ডেইলি sometimes today every night every morning every year twice a day twice a week etc তো এই কিটা ওয়ার্ড যেটো হল এটো তার মানে হল যি সদায় কৰা কামটো আৰু এই ওয়ার্ডটো যদি আপোনাৰ কোনো এটা সেন্টেন্সত থাকে সেই সেন্টেন্সটো হ'ব প্रेजेंट इंडेफिनिट टेंसत जब भी आपको ये वर्ड्स कोई भी सेंटेंस में मिले तो जब भी आपको ये वर्ड्स कोई भी सेंटेंस में मिले तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो इसका फॉर्म देखते हैं यार फॉर्म टू साइलो फॉर्म होल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और यदि सब्जेक्ट टू थर्ड पर्सन सिंगुलर হয় তেতিয়াহলে ভাৰ্বৰ লগত s और es লগোৱা হয় और सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही शी इट लगा हुआ है या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम लोग s और es लगाते हैं उसके बाद आ गया यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिचुअल एक्शन रिमेन्स द सेम तो मनत राखिब जे यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन केতিয়াও चेंज নহয় এটো সদায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সতে থাকে यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन माने की होल यूनिवर्सल ट्रुथ माने जितु सत्य आमी केতিয়াও चेंज কৰিব নোৱাৰো जो भी सच है जो ऑलरेडी बनाया गया है नेचर के द्वारा लेकिन हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग के द्वारा चेंज नहीं हो सकता या फिर মানুহৰ বাবে जितु वस्तु चेंज নহয় তাকে यूनिवर्सल ट्रुथ কোৱা হয় আৰু हैबिचुअल एक्शन मीन्स সদায় কৰি থকা কামটো जितु আমাৰ हैबिट হয় সদায় কৰি থাকো তাকে আমি हैबिचुअल एक्शन বুলি কওঁ A universal truth and habitual action remains the same. इटू केতিয়াও चेंज न है ये कभी भी चेंज नहीं होता है तो अभी चलते हैं सेकंड
টেন্স में जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स 2 নম্বৰ টেন্সটো হ'ল প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে কি এইকিটা ওয়ার্ড লগাই আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বনাব পাৰো ইয়াত হ'ল নাও হাৰি আপ ওয়েট লুক যদি এই ওয়ার্ডটো কোনো সেন্টেন্সত আছে তেতিয়াহলে সেই সেন্টেন্সটো প্रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसत হ'ব ये जो वर्ड्स है नाउ हरी अप वेट लुक ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है और इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो यार फॉर्म 2 होल सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मनत राखिब जे इज सदाय सिंगुलर ऑब्जेक्टर लगत लागे एम आयर लगत और आर प्लुरल ऑब्जेक्ट यू टू होल सिंगुलर ऑब्जेक्ट बट स्टिल यूर लगत सदाय आर লাগিব কিন্তু ইয়াত অলপ চেঞ্জেस আহিব আপুনি চাব পাৰিব যে ইয়াত মই কিছুমান ওয়ার্ড লিখিছো ওয়ার্ড টু হোল নো ফিল হিয়ার সি আন্ডারস্ট্যান্ড হোপ লুক থিংক मीट पास एपियर होप एक्सेट्रा और এইকিটা ওয়ার্ডৰ লগত আইএনজি না লাগে ইনা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটো ওয়ার্ডৰ লগত আইএনজি না লাগে আৰু যদি এই ওয়ার্ডটো লগত এই ওয়ার্ডটো যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ফর্মত আহি আছে তেতিয়া হলে আমি এই ওয়ার্ডত সাবজেক্ট প্লাস ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব প্লাস ऑब्जेक्ट लगाम दैट तार माने होल आमी एटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसर फॉर्म टू यूज करें तो ये जो वर्ड है इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल में तो ये वर्ड के साथ आईएनजी नहीं लगता है तो एज ए कंटिन्यूअस हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो इसका अगर ये वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आया है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे दैट मीन्स हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आशा करती हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया होगा इतना मैं आगबाढ़ी जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू माने होल जीतु काम आमी ए मात्र हेक करिसो जो भी काम हम लोग ने अभी खत्म किया है उसी वही सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स है ये वर्ड हमेशा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं तो आपको जब भी कोई सेंटेंस में ये वर्ड मिलेगा जस्ट रिसेंटली येट ऑलरेडी जस्ट नाउ एवर नेवर एक्सेट्रा तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म यूज करेंगे अपनी जितना ये वर्ड टू कोनो एटा सेंटेंसत पाबो तेतिया आमी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर यूज करें तेतिया हले आमार यार फॉर्म टू हबो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैज सिंगुलर ऑब्जेक्टर लगत लागे और हैव प्लुरल ऑब्जेक्टर लगत लागे किंतु आई और यू एटू एटा सिंगुलर ऑब्जेक्ट बट स्टिल आई यूर लगत सदाय हैव लागिबो हैज ना लागे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला वर्ड है तो जब भी आपको ये वर्ड कोई भी सेंटेंस में मिले तो हम लोग तो आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कीजिएगा तो जो फॉर्म है ये यूज कीजिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैज सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है और आई यू जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ भी हैव लगेगा तो अभी हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल पर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग को वर्ड्स जैसे कि सिंस और फोर मिलेगा जब भी आपको कोई सेंटेंस में सिंस और फोर मिला तो करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब में हमेशा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही लिखा जाएगा तो अपनी जितना सिंस और फोर कोनो एटा सेंटेंसत पाबो तात अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसर यूज करिब तो इसका तार फॉर्म टू होल सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस मंडे बा सिंस 1999 तेनेके कोन एक्जेक्ट टाइमिंग जो থাকে सिंस 9 o'clock तेनेকুৱা सेंटेंसत आमी सिंस यूज करो और 4 टू होल 4 an hour 4 2 hours 4 a month जो आमार एक्जेक्ट टाइमिंग दिया নহয় তাত আমি 4 यूज करो यार फॉर्म तो আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে কিছুমান वर्ड मैं কৈছিলো যে जोत आईएनजी ना लगे तो ये जो वर्ड है जहाँ पर आईएनजी नहीं लगता है इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वैसे ही आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये वर्ड के साथ आईएनजी यूज नहीं होगा जब भी आपको ये वर्ड के साथ सिंस और फोर मिले तो आपको याद रखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख जेटा अपने ये वर्ड टू पाबो
যিকিটা ওয়ার্ড মই অথনি আপোনাক প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত বুজাই দিছো সেই ওয়ার্ডটো যদি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সতো আইএনজি ইউজ কৰা নহয় তেতিয়া আপোনাৰ এই ওয়ার্ডৰ লগত আপুনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সৰ यूज करेगा। तो इस वर्ड के साथ आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म ही यूज करना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था कुछ रूल्स प्रेजेंट टेंस का, जहाँ पर आप इस रूल्स को पढ़ के आप करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व कर सकते हैं। तो এইকেইটা रूल যদি ভালকে আপুনি বুজি লয় এইকেইটা रूल এই ওয়ার্ড কেইটা যদি আপুনি মনত থব পাৰে তেতিয়া হলে আপুনি কারেক্ট টেন্স ফর্ম অফ ভার্বটো বহুত ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি কিছুমান এক্সাম্পলত যাওঁ, এক্সাম্পলৰ লগত বুজিম যে আমি কেনেকৈ এই টপিকটো करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब टू सॉल्व কৰিব পাৰো। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो यात एग्जाम्पल 1, द बस यूजुअली अराइव हियर एट 6 o'clock। यात আপুনি वर्ड यूजुअली टू चाও, आप ये यूजुअली वाला वर्ड देखिए, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। यूजुअली तो आम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करूँ। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसर फॉर्मर हिसाब से तार आंसर तो हम द बस यूजुअली अराइव्स हियर एट 6 o'clock। तो इसका आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ये होगा, द बस यूजुअली अराइव्स हियर एट 6 o'clock। सेकंड क्वेश्चन टू साउ, हरी अप द टैक्सी वेट। यात आमी साम हरी अप। सो हरी अप आमार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसत आसिले, तो तार आंसर हबो हरी अप द टैक्सी इज वेटिंग। थर्ड नंबर टू साउ, ही स्लीप नाउ। यात आमार आसे यात आसे आमार वर्ड नाउ, यहाँ पे हम लोग का वर्ड है नाउ जो कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो यार आंसर टू हबो ही इज स्लीपिंग नाउ एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तार पिছত আহিলে आई नॉट टेक माय ब्रेकफास्ट येट। येट टू आसिले आमार प्रेजेंट परफेक्ट टेंसत। तो प्रेजेंट परफेक्टर फॉर्मत हबो आई हैव नॉट टेकन माय ब्रेकफास्ट येट। नंबर 5 टू होल, दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 years। तो इटुत आसिले 4। सो 4 आसिले आमार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसर फॉर्मत। सो यात हबो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। तो जो आप लोग को सिर्फ देखना है ये वर्ड जो कि मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जो रूल्स है, रूल्स में जो वर्ड्स दिया हुआ है उस वर्ड्स को ध्यान से याद रखिएगा, तभी आपको बहुत इजीली इस करेक्ट द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को सॉल्व करने में आसानी होगी। और नंबर 6 और 7, तो ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है 6 और 7 ये आपके लिए है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। আপোনালোকে ইয়াৰ আনসাৰ টু কমেন্ট বক্সত জনাব। আশা কৰিছো যে আপুনি এই টপিকটো ভালকৈ বুজি পাইছে। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পাষ্ট আৰু ফিউচাৰৰ ৰুলছ কেইটা লৈ আহিম এক্সাম্পলৰ লগত। যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে বুজি পাইছে তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।